Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So in the last session, in the previous session, we have discussed about thunderstorms, but today we will start with how thunderstorms convert into cyclone, because small things give rise to bigger things. So thunderstorm will eventually give rise to cyclone. During thunderstorm, water releases heat when it changes from vapor to rain into the atmosphere. This warms the air around and creates a drop in pressure. What will happen when, as we have said, when the water releases heat? Water or environment or that vapor have some heat into it. So when it will go up, there it will become a bit cool, and after that it will release its energy, its heat. Basically it will release its energy in the form of heat. So when it changes from vapor to rain in the atmosphere, as I said, when it will be changing, it will change from vapor to water form or into rain or into droplets, rain droplets. It will release some energy which it has already in past have stored into it. So they will release that energy, that heat. This warms the air around and creates a drop in pressure. What will happen? The heat is there, the warmness is there, and the warm air creates a drop in pressure. So there is a drop in pressure up also. This causes air to rush in towards the center of the storm. This cycle becomes large, low pressure system accompanied by strong high speed winds that swirl around it. It is the formation, this is the formation of cyclone. What will happen? There is a pressure difference. There is a low pressure here and high pressure here. So it will eventually make a circle cloud-like structure. All the things, this cycle of lowering pressure and high speed, and this will continuously work. And after that, what will happen? From high pressure to lower pressure, air will move from high pressure to lower pressure. तो अंदर की साइड वो हवा आने लगती है, उस सर्कल के अंदर हवा आने लगती है. हवा के साथ वो इतनी स्पीड में होती है एयर कि उसके आसपास जितना भी एरिया होता है सब साइक्लोन या उस सर्कल के अंदर आता जाता है, तो वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. A cyclone is a large mass of air that rotates violently about 1015 kilometers high in air. अब जो साइक्लोन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उसके काफ़ी ज़्यादा मास होता है एयर का, जो कि रोटेट करता रहता है बहुत ज़्यादा ईगरली और वॉलेंटली. उसकी स्पीड 1015 किलोमीटर्स की स्पीड पे वो रन कर सकता है, वो एयर जो है रोटेट कर सकती है. द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ काम एरिया कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. जो सेंटर का एरिया है साइक्लोन का वो काफ़ी काम रहता है, वहाँ इतना ज़्यादा रश नहीं है पर आसपास है. तो जो सेंटर का एरिया है दैट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. अंडरस्टूड? नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन. द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ काम एरिया कॉल्ड द आई. It has a diameter of about 10 to 30 kilometers. What is a cyclone? Cyclone has a very calm area. You know what is cyclone? This is cyclone, and majorly cyclone in the sense कि when water there is a uprise in water just because of the air pressure या difference in air pressure. तो cyclone क्या होता है? काफ़ी calm होता है actually center से. So that is called the eye of the cyclone. उसका diameter हो सकता है 10 to 30 kilometers. Around the eye is a region of clouds about 150 kilometers. जो eye का area है, the eye of the cyclone, around the eye of the cyclone एक cloud का region बन जाता है जो actually में 150 kilometers का उसमें वो रहता है, clouds का structure रहता है. This also have winds with speed of up to 150 to 250 kilometers per hour. जो उसके अंदर wind रहती है उसकी speed basically रहती है 150 to 250 kilometers. Can you imagine how fast the speed can be?
द स्पीड ऑफ द विंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द आई। अगर आग से जो आई ऑफ द साइक्लोन है उससे जितना दूर जाएगा इवेंचुअली उसकी स्पीड उतनी डिक्रीज होती जाएगी। जो आई ऑफ द साइक्लोन के सबसे क्लोज है, जहाँ का एरिया सबसे क्लोज है, वहाँ पे एक्चुअली में स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी। टाइप ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन आर गिवन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दे आर कॉल्ड एज हेरिकेन्स इन द अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड अ टाइफून इन जापान। तो साइक्लोन के कुछ डिफरेंट नेम्स हैं, अलग अलग टाइप के नेम्स लोगों ने अपने हिसाब से दे रखे हैं। अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है बेसिकली उसमें उसको हेरिकेन कहते हैं। जापान में इट इज़ कॉल्ड टाइफून। नाउ वी विल टॉक अबाउट टॉर्नेडो। अ टॉर्नेडो अकर विदिन अ साइक्लोन। जो साइक्लोन है, अब थंडर स्टॉर्म से साइक्लोन बना, साइक्लोन के अंदर ही टॉर्नेडो है। It is a shape of a rotating funnel that sucks in debris, dust and everything at the bottom and throw them out at the top. जो टॉर्नेडो है बेसिकली वो साइक्लोन के अंदर ही बनता है और वो एक फनल टाइप का, इस तरीके का फनल होता है और ये नीचे की साइड ये फनल का स्ट्रक्चर है। तो इस शेप में एक्चुअली इस शेप में टॉर्नेडो होता है एंड वो किस चीज़ से, यूजुअली डस्ट, मिट्टी या जो भी उसके नीचे चीज़ें आती जाती हैं उस सब चीज़ों से बना होता है। वो सब चीज़ें उसके अंदर खिंचती जाती हैं, वो नीचे से ऊपर तक चीज़ों को फेंकता है। इट्स डायमीटर रेंजेस फ्रॉम अ मीटर टू अ किलोमीटर विद स्पीड अप टू 300 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली उसका डायमीटर 1 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक हो सकता है और उसकी स्पीड होती है 300 kilometers per hour. I hope it is clear till here. Now we will talk about Coriolis effect. The force due to Earth rotates that tries to deflect winds towards left or right is known as Coriolis effect. Coriolis एक्चुअली में क्या होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से एक्चुअली जो विंड का मूवमेंट है या विंड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कोरिलियस इफेक्ट्स। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिजास्टर्स. नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स दैट वी कैन टेक टू सेव आवरसेल्फ और टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स और पीपल अराउंड अस. So safety measures and role of advanced technology. Steps to follow if a storm is followed by lightning. अगर storm lightning के साथ है तो आपको क्या क्या steps करने हैं? Avoid taking refuge under isolated trees. refuge तो आपको usually trees या isolated trees, हटे साइड के जो trees हैं या उसके आसपास कोई एरिया नहीं है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, वहाँ आपको कोई शेल्टर नहीं लेना है. इफ़ इन अ फॉरेस्ट सीक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. बहुत छोटा सा जो ट्री हो वहाँ उसकी शेल्टर लें. अगर आप अकेले हैं फॉरेस्ट में, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप जो छोटे छोटे ट्रीज़ हैं उनके पास जाके शेल्टर लीजिए. लेकिन डोंट टेक शेल्टर ऑफ आइसोलेटेड ट्रीज़ जो बिल्कुल दूर हो, उसके आसपास कोई एरिया नहीं हो, ऐसे ट्रीज़ पे प्लीज़ नहीं जाएं. डो नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. ज़मीन पर नहीं लेटें. साइक्लोन आपको साथ में, स्टॉर्म जो है वो आपको साथ में ले जाएगा. डो नॉट ट्राई टेकिंग कवर अंडर अ अम्ब्रेला. अम्ब्रेला के नीचे छुपने की कोशिश मत करिए क्योंकि वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है और वो यहाँ से जब इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली अम्ब्रेला तो जाएगी, साथ में आप भी उड़ जाओगे. सो कीप इट इन माइंड. अवॉइड सिटिंग नियर मेटल शेड्स एंड ओपन गैराज. डोंट सिट नियर मेटल शेड्स क्योंकि जैसे कि पता है कि उस टाइम बारिश हो रही होती है, जो स्टॉर्म होता है उसमें बारिश हो रही होती है एंड वाटर एंड लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही है. तो मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या लाइटनिंग, जो तो वो काफ़ी डिज़ास्टर्स हो सकता है. इफ़ इन वाटर रश आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग. जैसे कि मैंने बताया पानी करंट का काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है. वो काफ़ी लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है उसको अपने थ्रू पास कर सकता है. तो अगर आप पानी के अंदर हैं, कहीं पर भी अगर आप पानी के अंदर हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, एटलीस्ट घर में भी, तो रश आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग. पानी से बाहर निकलिए और किसी बिल्डिंग में जाकर सेफली शेल्टर लीजिए.
अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक कवर। कार या बस में आप आराम से बैठिए, वो काफ़ी सेफ रहेगा। एंड उसकी मेजरली बात यह है कि उसकी जो विंडोज़ हैं, कार की विंडोज़ हो गई या गेट हो गया, उसको प्लीज़ क्लोज रखिए। मेजर ऑफ सेफ्टी फ्रॉम टॉर्नेडोज। एक्चुअली स्टॉर्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। टॉर्नेडो आए तब हमें क्या क्या मेजर्स लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम्स। साइक्लोन फोरकास्ट और वार्निंग सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को एटलीस्ट अवेयर करना कि हाँ साइक्लोन हिट होने वाला है। रैपिड वार्निंग एंड रैपिड वार्निंग एंड फिशरमैन एंड पीपल टू प्रोन जोन्स। अब रैपिड वार्निंग होनी चाहिए, फिशरमैन्स को देनी चाहिए, और जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा हों, पीपल इन प्रोन जोन्स जो हैं वहाँ पे उनको वार्निंग जल्दी पहुँचनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स एंड रैपिड इवैक्यूएशन स्कीम्स। गवर्नमेंट या फिर हम लोग भी कुछ साइक्लोन शेल्टर्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से, और ऐसे इवैक्यूएट शेल्टर्स जहाँ पे अगर एकदम से साइक्लोन हिट हो जाए या हम नहीं निकल पाएँ तो हम उस साइक्लोन शेल्टर्स में जाके सेफली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, या ऐसे इवैक्यूएशन स्कीम बनाएं कि आप जैसे ही साइक्लोन आपको पता चले कि हाँ हिट होने वाला है तो आप वहाँ से इवैक्यूएट, उस जगह को खाली कर सकें। अवॉइड फॉलन पावर लाइंस। जो पावर लाइंस या कम्युनिकेशन के लिए जो भी चीज़ें फॉलन ख़राब हो चुकी हैं या ऐसा कुछ टावर वगैरह, अवॉइड फॉलन पावर लाइंस। ओके। कोऑपरेशन विद अदर्स एंड रेस्क्यू टीम्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स. So cooperate with others and rescue teams. Rescue your neighbors, rescue your team, rescue your people which is around you. Don't be selfish at these situations when disasters or something bad is happening. Don't leave others' side, please. It is very important. So till now we have finished with this chapter. We have done with the book reading, notes reading, notes understanding, and I've sent you all these notes, and I've sent you question and answers to do it in your notebook, the question answers and the notes. And if you have any problem, I hope this chapter is clear, but still if you have any problem related to this this chapter, do contact me. Have a nice day. Take care. Thank you.